बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में ये देखना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है 21 अक्टूबर को। अवाम उनकी वापसी के बाद उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और दूसरा इस निज़ाम ने ये जो हम जमहूरियत हर वक्त कहते हैं कि सियासतदान किसी भी सियासी जमात से कि हम जमहूर के साथ हैं, हम अवाम के साथ हैं, इन सियासतदानों ने जमहूरियत के नाम पे अवाम को फ़ायदा दिया या सिर्फ अपना फ़ायदा किया? ये दो सवाल हैं, ताकि सियासतदानों तक भी हकीकत पहुँचे कि अवाम आज क्या सोच रही है। अब हम मिलेंगे आपको अवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिंची चढ़ाते हो जी भाई साहब, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, दूसरा सवाल भी कर लवो। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਛੀਨਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਅੰਨੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, कोई ईमानदार बंदा नहीं है। ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਚਾਹ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਵਾਲਾ ਛੀਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵਣ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ? ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ हैसियत है। मैं पहले मिसाल दी है कि पाकिस्तान का कानून एक ऐसा कानून है कि अन्नी पी रही है। वो एक देहाती बेसिकली किया जाता, मैं उर्दू च भी दस सकना, लेकिन एक अन्नी पीती जा रही, आटा पी रही है। जबकि कैदे मोहतरम आ रहे हैं तो अपने फायदे आ रहे हैं, गरीब आवाम को लुटन वास्ते आ रहे हैं। कैदे मोहतरम साहब जेडे आ रहे हैं ना, उन्होंने मुल्क को की आन के दिता है? 36 साल उन्होंने हुकूमत की है, की दिता ने मुल्क को? 3 साल ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? 5 ਸਾਲ ਕੀ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਏ, MCB ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ ਨੇ। ਕਬਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜੀਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਉਸਤਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 15000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ 4000 5000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ 8000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਰੋਟੀ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ। ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਨੂੰ 5000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਐਮਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਵੋਟ। ਐਮਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾ ਦੇਗਾ, ਮਰਾ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਵੇਗਾ, ਸੈਲਫੀ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਵੋਟ ਉਨਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਈਏ ਨਾ, ਮੈਚ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਚਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਤਰਮ ਆਇਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਮੋਹਤਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਵਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਾਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਦੇ ਹੁਣ, ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਜਜ਼ੀਏਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਅਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਲਕ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਾੜ, ਫਿਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਚਟੀਅਲ ਮੈਦਾਨ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਪਹਾੜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਬਣ ਦਾ 120 160 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਿਲੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਿਓ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਲੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਟੀ 7 ਰੁਪਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਵਾਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਰੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟ ਹੀ ਰੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਚੌਧਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਵੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਂ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਦੇ ਪਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਮੋਹਤਰਮ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਰਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਇਦੇ मोहतरम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਗੋਲਾ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਦੇ मोहतरम ਜੀ ਸਰ, ਕਾਇਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਤੋਹਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਇਦੇ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰ ਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਾਇਦੇ ਸਰ, ਕਾਇਦੇ मोहतरम ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋ ਕਾਇਦੇ मोहतरम। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं आपका दिल दुखता है? सर दिल क्यों सर, फिर वो गल करती है। सर मैं आज तो पहले किसी पार्टी को सिर्फ मैं पीपल वाले में वोट देता है, 2017 में पीपल वाले में वोट देता है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्फिया कहना वोटर नहीं सी। 2017 तो बाद मेरे घर वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, और खुदा दी कसम है मरीज लगे तो मेरी बेटी है 17 साल, सॉरी एक 7 साल दी, एक 12 साल दी। वो कहती पापा चुप कर जो, मुझे वो सुनने दो। जब वो जमा पार्क पहला ऑपरेशन हुआ तो फिर मेरी बेटी और कसम खुदा मेरी बेटी ने कहा पापा वो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे, हम उसको मिलने जाना है, उसको पकड़ के ले उसे हमें मिलने जाना है। आपकी बेटी ने कहा? जी, अब मेरी बेटी को एक छोटी सी बहन 7 साल की और एक 12 साल की, दोनों ने कहा है कि पापा हमने मिलने जाना है, उसको वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। और वाकई हकीकत बात है, रात सोए नहीं है। तो कायदे मोहतरम के आने पे बेटी क्या कहती है? वो जानते नहीं उसे। कायदे मोहतरम को नहीं 36 साल सर कारी आज मोहतरम सर, फिर वही बात सर। नवाज शरीफ को नहीं जानते? नहीं सर, मियाँ भी नहीं है कहना, मियाँ भी मियाँ का भी लफ्ज खत्म कर देना, अकेला नवाज शरीफ भी तौहीन है, शरीफ जो लगा वो ये भी तौहीन उसके साथ। इतनी नफरत क्यों करते हैं कायदे? सर समझा दिया, पता चल गया ना कि ये हमारे मुल्क के साथ किया क्या इन्होंने, ये समझा दिया है। इनके पास अकल ही नहीं ये वो नवाज शरीफ की कदर कर सके। हम लेने जाएंगे नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला। आपको पता ही नहीं, आपको पता नहीं पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई अब इस एक छोटी सी बात सर, एक सवाल मेरे साथ करो, कितनी बार वज़ीर आज़म हुआ है नवाज शरीफ? कितनी दफा? 3.5 साल में 3.5 साल पीटीआई के चेयरमैन ने सर आप सवाल आप क्वेश्चन भाई इनके सवाल नहीं, आप इनके सवाल का जवाब। इसकी बात का आप जवाब दें। सर आपने खड़ा कर दिया। आपका सवाल क्या है? मैंने कहा पीटीआई ने 3.5 साल में हम पर तजर्बा किया, क्या किया थी? क्या तजर्बा किया, जो आप बता दें क्या तजर्बा किया? उसे हुकूमत चलानी नहीं आती, वो हम पर तजर्बा करता रहा 3.5 साल में। अगर उसे हुकूमत चलानी आती तो वो 5 साल पूरे करता। नजरिया बता दें कि ये उन्होंने तजर्बा जब किया है, 2018 में नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के गया, क्या हालात थे? क्या हालात थे? 6 रुपए की रोटी थी, तो आज से 20 तो साल पहले आज 20 रुपए की रोटी। आज से 20 महंगाई साल शुरू पहले इमरान खान ने की है। आज से 20 साल पहले मैं 8 रुपए किलो दूध लेता मैंने था। कहा इमरान खान तो उसे नवाज इमरान शरीफ दौर में कितना था? खान महंगाई शुरू इमरान खान ने की है। जवाब तो देना। आज से 20 साल पहले मैं 8 रुपए किलो दूध लेता था। अब जो मियाँ आ रहे अजे की फायदा होएगा कौम ਨੂੰ? सर मियाँ साहब ने जड़े निस्बत बेहतर ने साड़ी जी नौजवान नस्ल है ना उन्होंने यूज़ किया है। जज्बाती जेन होंगे ने, जज्बाती जे नारे ला के मतलब वो जिस तरह बच्ची की मिसाल दे रहा कि 8-10 पिछले 10 साल तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया हर बंदा देखता है तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके साड़ी जी आवाम है ना, नौजवान नस्ल उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक मैं समझना हो सकता मैं गलत होवां कि उन्होंने गुमराह किया है। तो साड़ी एक आवाम की भी आदत है कसी हमेशा दूसरे सारे हुक्मरानों गालां करने, चाहे नवाज शरीफ है, जरदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, सानू कम से कम उन्होंने नाम अदब एहतराम ने साढ़े विचों ने, साढ़े भाई ने, साढ़े बजुर्ग ने, सानू उन्होंने पॉलिसियां तो इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। गाली मतलब गाली गलोच करना ये अच्छी गल नहीं है। हाँ जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या फायदा होगा? जो बहुत सस्ती हर चीज़ करेगा वो ही ठीक है। तो वो करने आ तो रहे, तो आएगा तो कोई चीज़ सस्ती होएगी तो पता लगेगा। होएगी इंशाल्लाह ताला। आटा सस्ता मिले, चीनी सस्ती मिले,
हर चीज़ सस्ती मिले तो फिर तो है, फिर नवाज शरीफ लेने वास्ते जा रहे हैं। तो फिर वही काम ना हो इमरान खान पूरा लाहौर 8 बजे कोरोना चला जाए, शाम को 4 बजे कोरोना आ जाए। आप कितने बंदों के साथ जा रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बंदों की बात नहीं कर रहा। आप खुद जाएंगे? हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा उसको लेने के लिए, इस्तेमाल के लिए। और आपके लिए नवाज शरीफ उम्मीद की जाए? उम्मीद है बिल्कुल। आखिरी उम्मीद। हमारे हुक्मरान हम में से होने हैं, हम सब करप्ट हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि सब नाअहल हैं सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा, ये बात दुरुस्त है? नहीं नहीं, मैं इससे इतफाक नहीं करता। पाकिस्तानी सारे अहल हैं, सिर्फ थोड़ी सी रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। हमें आदत है दूसरों पे उंगली उठाने की, दूसरों को गाली गलौज। ये जो रिक्शे वाला है ये भी करप्ट है, ये जो रेडी वाला है ये भी करप्ट है। हम 10 15 20 बंदे ये खड़े हैं, हुक्मरान या साढ़े विचों कोई नंबरदार बनाना है तो साढ़े विचों चुनिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। नवाज शरीफ आ रहा है, क्या फायदा होगा एक रिक्शे वाले को, आम आदमी को? सानू तो ये फायदा होएगा, अगे जलील होए खड़े थोड़े जे सौखे हो जाए बस। वो बेहतर कर देगा, बेहतर कर देगा, उम्मीद है इनदे ते, उम्मीद है इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है नवाज शरीफ ते। अगे कुछ देर रहा है ते साडी जेबे पैसे नहीं मुकदे है, फिर इनू बाहर निकाला गया है ते असीं खजल खुआर जलील हो गए हैं। पेट्रोल पवान तो आवाज़दार हो गया सी, थोड़े दिनों तो हुण फिर अल्लाह पाक ने गड्डी सोहनी चलाती है। चलो रोटी रोजी कमा रहे हैं, उंज बचदा बचांदा हले शै नहीं पई। जदों इन्हें आ जाना है उदों फिर तो उम्मीद है भी शुक्र है माल हालात बेहतर हो गए, रोटी रोजी सोहनी कमा लेने। बड़ा सोहना मौसम भी सोहना हो गया। अल्लाह पाक भी चाहता है कि नवाज शरीफ साहब होरी वापसी आन ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ। भाई साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब नून लीग के कायदे मोहतरम और हर जो भी उन्हें कहना चाहे वो कहते हैं हमारे कायदे मोहतरम है, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या बेहतर हम उसको कायद शायद नहीं मानते, हम उसको कायद नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते चाचू? हमारा जो अपना कायदा है वो है ना, ठीक है, हमारा कायदा है वो है, वो तो अभी तारीख बन गया है ना, वो हो गया बस, हम उसी के हैं। हम किसी और अब तो जिद्दत पसंदी तो यही है कि जो आए उसके साथ खड़े हो जाए। तो और पाकिस्तानी और इस खित्ते की नेचर भी ये है कि चढ़ते सूरज की पूजा, इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, चढ़ते सूरज की पूजा। कोई नहीं चढ़ते सूरज की पूजा। उन्होंने किया है मुल्क के लिए, उन्होंने किया है मुल्क के लिए, चाचू अपनी बर्बाद ही किया है ना। अपनी सेहत भी तो बर्बाद की उन्होंने ना। सेहत बर्बाद की, सेहत उनकी बर्बाद नहीं है, वो इलाज के लिए नहीं गया है, वो उधर खाने के लिए गया हुआ है। जो इधर से कमा के गया है ना वो उधर खा रहा है बैठ के आराम से। जलील इधर आवाम हो रही है, सारी दुनिया आवाम इधर जलील हो रही है, वो उधर आराम से बैठ के खा रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है इधर आके, अगर वो इतना खा रहा है? फिर वो कमाना चाह रहा है, फिर वो कमाना चाह रहा है, फिर वो जो रही कई कसर है ना आवाम की वो निकालना, खून जो इनका अभी रगों में बाकी है ना वो निकालना चाह रहा है। हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, हम तो IMF की इमदाद से चाह रहे हैं, अब क्या कमाएंगे यहाँ वो? IMF उन्होंने लिया है ना, हमने तो नहीं खाया, आवाम ने तो नहीं खाया, सारे बड़े बड़े लोगों ने खाया है ना जितने भी आए। IMF कहाँ गया वो? तो आप ऐसे भी तो सोचे कि नवाज शरीफ हो सकता है आपकी मदद के लिए आपके हालात बेहतर करने आ रहे हो। जब हम 50 साल इधर हमारी जिंदगी हो गई है, जब किसी ने मदद नहीं की तो आज नवाज शरीफ कैसे करेगा? पहले नवाज के दिल शरीफ में का एहसास हो गया हो। कोई नहीं हुआ, अभी मजीद वो मारने के लिए आ रहे हैं। वो ये मुल्क बेचेंगे और फिर चले जाएंगे। चाचू देखें, वो जब इलाज होता है तो कड़वी गोलियां तो खानी पड़ती हैं, वो उन्होंने हमें कड़वी वो गोलियां खिलाई हैं। पहले खिला दिए हैं, पहले खिला दिए हैं। अल्लाह की कुदरत से कोई बच गया है तो अभी वो जो है ना इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहे हैं जहर के, फिर मरेंगे इंशाअल्लाह। वो मारने के लिए आ रहे हैं, जिलाने के लिए नहीं। चाचू इतनी मायूसी क्यों? आपका चेहरा भी नूरानी है माशाल्लाह, तो शरा भी है, सुन्नत भी से चेहरे पे सजाई है, आप तो खुशी मनाए के कायद आ रहे हैं। कोई नहीं कायद कोई नहीं, कायद होते तो वो इस तरह करके ना जाते, चोर चोर के नारे ना ना करे। आपकी तबीयत खराब होती है, आप इलाज के लिए बाहर ना जाते? हमारे पास पैसे होंगे तो जाएंगे। उन्होंने तो कमाया है, वो इलाज के लिए बाहर चले गए। इधर जो है वो इनका इधर पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, बाहर कैसे जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? वो पैसे देंगे या हम लेंगे? किधर से लेंगे? हम इधर ही मरेंगे। वो दोबारा मारने के लिए आ रहा है, जो रही कई कसर है ना बकाया, वो निकालने के लिए आवाम का आ रहा है। इंशाल्लाह अभी आवाम मरेगी, जब वो जो भी आवाम उनकी सपोर्ट करेगी ना वो मरेगी इंशाल्लाह। आप उनका इस्तेमाल नहीं करने जाएंगे? इस्तकबाल हमें अपना पता नहीं है, हम उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे? हमें अपना पता नहीं है कि हम कहाँ हैं क्या है। जो रोजी रोटी हम कर रहे हैं हमने वही करना है। वो आ जाए ना आ जाए, चला जाए, मर जाए, हम वहीं पे वहीं हैं।
हमें उससे कोई सरोकार नहीं। चाचू ऐसी बातें करेंगे मेरे दिल अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो, लोग उनके चाहने वाले हम तो कहते हैं कि देखो लौह महफूज पे ज़िंदगी लिखी हुई है, उसने भी मरना है, हमने भी मरना है। वो अपनी मौत मरेगा, हम अपनी मौत मरेंगे। ना वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, ना हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जो जाएंगे वो अपना ज़हन अपना खाली करके बेवकूफ़ ही होंगे जो इस्तकबाल के लिए जाएंगे। पहले इस्तकबाल उनका क्यों नहीं किया? जब वो जा रहा था उसी वक्त उनको न जाने देते कि जाओ जी इस्तकबाल करते हैं आपका, इधर बैठो। उस वक्त क्यों नहीं रोका? अभी क्या करेंगे इस्तकबाल? ऐसे इस्तकबाल होते हैं। ये सारा दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गया जी, चला गया जी, आ गया जी, चला गया जी। क्या है ये सब बेवकूफ़ी है। ये दुनिया पहले ही। आपने कभी उनकी वापसी की दुआ नहीं की थी? मैं तो उनके मरने की दुआ मांगूंगा, वापसी की क्यों मांगूंगा? मुझे क्या है? मुझे उसने दिया क्या है? चाचू उनके ऐसे चाहने वाले हैं जो कहते हैं अल्लाह करे हमारी उम्र भी कायदे मोहतरम को लग जाए। नहीं लगती। लौह महफूज पे लिखी हुई है ना, उनके इनके कहने से ना किसी को मौत आती है, न किसी की दुआ मांगने से किसी को ज़िंदगी लग जाती है। ज़िंदगी तो वो अपनी पहले बना चुके हैं। चाचू उनके करोड़ों चाहने वाले आपकी बात सुनेंगे उनका दिल दुखेगा? नहीं दुखेगा। मुझे आके वो क्या करेंगे? दिल दुखेगा? मुझे क्या करेंगे? कुछ नहीं, वैसे वो कह रहे हैं आप कोई अच्छी बात कर दें। नहीं करते। मैं अच्छी बात कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इधर 50 साल ज़िंदगी गुजारी है और मजदूरी करके अपनी मेहनत करके कमा के खाया है। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या किसी ने दिया कुछ नहीं है, बस ये है। तो क्या? बहुत शुक्रिया चाचू। चाचू ने बड़े, मैंने तो कोशिश की कि इनके दिल से मियाँ साहब की मोहब्बत निकालूं, इनके एवज दी है। हाँ जी मियाँ साहब आ रहे हैं सर, जा रहे हो की फायदा होगा? अल्लाह का शुक्र। नहीं मियाँ साहब की किहड़ी जरूरत है आने दी, उत्थे ही रहन। कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं। अगर ना आए तो मुल्क नहीं बचदा। मरियम साहबा कहंदे ने, ए मियाँ शहबाज साहब कहंदे ने मुल्क इस जिंदाबाद हैं? जिंदाबाद कहंदे ने तारीख बन गया जी। नहीं साडे दिलां च वसदा है। किथे हैगा बताओ? वो कट के दिखाई थानू बसदा वाकई? हाँ इंशाअल्लाह जी। हैं? वो एक जज्बा है। मियाँ एक नशा, मरियम औरंगजेब ने कहा था मियाँ नवाज शरीफ एक नशा है। नहीं नशा नहीं है, ये जहर है हमारे लिए। ये जहर है, नवाज शरीफ जहर है। इंशाल्लाह। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। क्यों? मैं फिर ये आप गुस्से में कह गए, मुझे पता है वैसे बाय नेचर नहीं है, फिर भी वापस ले लें। नहीं बाई नेचर कैसे वापस ले लें? हमारा छोड़ा क्या है उन्होंने? एक गरीब आदमी का इलाज हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं जानता। एक सेहत सहूलत कार्ड की जो सहूलत थी ना हमें, वो एक गरीब आदमी उसका इलाज हो रहा था। अब बिल्कुल वो यानी कि दर बदर हो गए। बाकी बातें नहीं मैं करता, एक छोटा सा पॉइंट है जो उसने किया है। अब कोई इलाज के लिए इधर उधर यानी कि कोई सहूलत नहीं है, क्या करेंगे? बुनियादी 2-3 चीज़ें बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं गवर्नमेंट की जो देनी चाहिए। एक तालीम और दूसरा सेहत। इन दोनों में उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने काम किया है, हम दिल से उसके लिए दुआ करते हैं। कोई हमारे वो मामे फूफी का बेटा नहीं है। हमने बाई फेस, आपको तो मैंने देखा, उनको मैंने बाई फेस भी नहीं देखा। ठीक है, कुरान पाक की तालीम का 9th क्लास का अभी उन्होंने सब्जेक्ट एक दिया है कुरान पाक का। इस दफ़ा उसका रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ है। इन लोगों ने क्या किया है? उसको सिर्फ 3-3.5 साल मिले हैं, और वो भी खैंचातानी में। इनको मेरी बात नहीं मिले। मैं बात सुने ना, इनको पीडीएम ही ने मियां हमें मौलाना फजलुर रहमान के सूरत में एक रूहानी आलम भी तो दिया इसको उनको। उनका बयान एक सुना था 2011 का, इनका कि जब ये चोर, जब भी इनको हाथ पड़ेगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। वो एक एंकर थी, वो कह रही कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो होंगे। ये 2011 का बयान है उसका कि ये सब चोर इकट्ठे होंगे, और ये ठीक 7-8 साल बाद सारे इकट्ठे हुए, अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हुए, कोई हमारे पेट के लिए इकट्ठे नहीं। अब इन्होंने कितने कानून पास किए हैं? शहबाज शरीफ कह रहे मैंने सियासत बर्बाद की चाचू आपको और मुझे बचाने के लिए। कौन सी सियासत? किसके लिए? अपने लिए सियासत। वो अपने लिए सियासत करते। सियासतदान होता है अवाम के लिए। अवाम के लिए क्या किया उन्होंने? अपनी नून लीग खत्म कर दी, कहते हैं अपना आप बचाया उन्होंने। सर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कायदे मोहतरम, मैं इसलिए कहता हूँ नून लीग वालों ने कायदे मोहतरम कहते हैं। वो कहते हैं हमारे कायदे मोहतरम फरमाते हैं कि अगर ये पीटीएम ना आती तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। सर ये बातें मैं नहीं जानता कि ये किस तरह हम जो हमें सहूलतें मिल रही हैं, क्या ये इनकी दी हुई हैं? इनके अजाब दिए हुए हमें मिल रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल हो गया, हम अपना एक पैसा बचाते हैं।
मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ये कार्ड पे सफ़र करता हूँ, ठीक है, बेशक इन्होंने दिया है, बेशक इन्होंने दिया है, लेकिन क्या करता हूँ मैं बाइक खरीदने की पोजीशन में नहीं हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ और कार्ड पे सफ़र करता हूँ कि ये बस पे 5 रुपए इस कार्ड की वजह से बच जाएं। ये चिंची रक्षा, ये दूसरे वाला रक्षा, ये मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या करें? आप सरकारी मुलाजिम? जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं अपने गांव 2-2 2.5 साल बाद जाता हूँ। क्यों? मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी पूरी फैमिली को लेकर नहीं जा सकता, क्या करें? किसके आगे रोएं? क्या करते हैं ये? 2-2 2.5 साल हकीकत है, मैं 2-2 2.5 साल बाद जाता हूँ और पूरी फैमिली तब भी नहीं लेके? नहीं मैं लेके जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो सरकारी मुलाजिम तो मोजे मारते हैं तो। कौन सी मौजें हैं? मैं हकीकत है खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1 रुपए का रवादार नहीं होता कभी किसी मुलाजिम से, किसी। 10 तारीख को सैलरी खत्म हो जाती ठीक है, है, से भी पहले हो जाती है। क्या करेंगे? हमारी एक वो उम्मीद थी जिसको उन्होंने सब चोरों ने लुटेरों ने रल मिल के वो इकट्ठा के एक साइड पे फेंक दिया उसको। एक सरकारी मुलाजिम इतना दुखी, हकीकत है, क्या करें? एक तलक सवाल पूछ सकते हैं? जी घर में जो फिर आपके हालात है, जितनी ईमानदारी से फिर आप काम कर रहे हैं, आप तो खाना भी जो इस वक्त महंगाई का दौर है, अपनी तो अशिया खुर्दोनोश भी मुकम्मल नहीं कर आपको सकते। मजे की बात बताऊं, हकीकत में अभी आज ही अपने ऑफिस में बैठा बात कर रहा था कि पिछले 7-8 महीने से मैंने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया। आप कौन से बात करते हैं? मैं एक सिर्फ सफेद पोश नजर आ रहा हूँ, ये रक्षा ड्राइवर है ना, इसके भी वही हालात है, मेरे सफेद कपड़ों के भी वही हालात हैं। 7-8 माह से हमने मुर्गी का गोश्त नहीं खाया, मैं घर में अपनी मुर्गी का गोश्त नहीं पका सका, जबकि आदि कसम खा के कह रहा हूँ, और मुझे वो कुछ नहीं दे रहा था, मेरा कुछ नहीं लग रहा, इसके बावजूद मैं महीने में 1-2-3 दफा गोश्त लेके जाता था। किस चीज की बात कर रहे हैं? कभी लोगों के घरों के हालात झांक के देखें, क्योंकि मैं बल्कि आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप लोगों के घरों में जाते हैं, हाईलाइट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं। इन्हीं के दौर में आपने हाईलाइट किए इतने प्रोग्राम, इनकी सेहत पे क्या असर पड़ा है? कोई पड़ा आपके प्रोग्राम का कोई फर्क? कुछ साबित कर सकते हैं आप? ये 70-72 कानून बनाए इन्होंने पिछले दौर में, किसके लिए बनाए हैं? कानून पास किए हैं इन्होंने? कोई एक कानून किसी अवाम के लिए इन्होंने पास किया हो? जब एक मुल्क में सरकारी मुलाजिम का ये हाल हो जाएगा, आम आदमी तो मर गया। सर मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपना कार्ड दिखा सकता हूँ। मुझे यकीन है, प्लीज प्लीज, आई ट्रस्ट यू। जी ये मेरा कार्ड है, योर आईज, योर एक्सप्रेशन। मैं ये कार्ड नहीं करना चाह रहा, ये कार्ड है मेरा, और 2.5 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही हमें। आपको शायद आपने प्रोग्राम देखे होंगे। किस चीज की बात करेंगे? किस चीज की बात करेंगे? क्या करें? सिर्फ ये सफेद धो के कपड़े पहने हुए हैं, इस बात को कह रहे हैं कि ये मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके हालात बहुत अच्छे हैं। कोशिश होती है कि कोई ना कोई चीज बेच के अपना बिजली का बिल दे दें, कोई और कोई चीज पूरी कर दें। गवर्नमेंट का काम होता है अवाम को सहूलत देना। ये वाली जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अवाम को सहूलत नहीं दी, इन्होंने अपने लिए सहूलतें पैदा की हैं, अदरवाइज हमारा उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ बेच के बिजली का बिल दिया, सच बताइए? नहीं मैंने अभी तक नहीं दिया, लेकिन आइंदा के लिए प्रोग्राम है कि जो हालात चल रहे, मैं अपने घर में एक सोलर प्लेट लगाई थी किसी दौर में, आज से कुछ 4-5 साल पहले, और जब भी कोई ज़रूरत होती ना मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ बिजली का। बच्चों को कहता हूँ कि नहीं यार इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको दूसरे सोलर वाला पंखा चला लें, लाइट सोलर वाली इस्तेमाल कर लें। एक प्लेट पे वो यानी कि अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ मैं। ये आपको आपके अंदर की बातें बता रहा हूँ मैं, आपको अपने अंदर की बातें, यानी कि हम कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं सरकारी मुलाजिम होने के नाते।
अपने हबीब के सदके आपकी क्या करें, हकीकत है। मेरी दिली हमदर्दी है आपके साथ। मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो अवाम के एक्सप्रेशन बाहर ला मैं देखता हूँ, ये बुजुर्गों की मैं बातें सुन रहा था, मैं हकीकत है, मैं अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या करें। यार इनका ये एक सरकारी मुलाजम है, इनकी आंखों में आंसू, इनके जज्बात, इनकी कामती आवाज़, इन्होंने कोई गैर यानी इल मैनेड बात नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी को कुछ नहीं कहा। देने से हमें क्या बनता है? इन्होंने सिर्फ अपना रोना रोया है, इन्होंने अपनी तकलीफ का इजहार किया है कि एक सरकारी मुलाजम जब इस नहज पे आ जाए तो सर वो तो फिर मर गया, जिसको किसी दिन दिहाड़ी मिलती है, जिसको नहीं मिलती वो तो मर गया। सरकारी मुलाजिम सिर्फ ये सफेद कपड़े हैं उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। जो ईमानदार है, जो ईमानदार है, जो प्रोग्राम अक्सर मुलाजिम जो देखते हैं ना, जो मेरे साथ जिनका वास्ता पड़ता है, वो हकीकत है, वो सच की आवाज को दिखाएं कि हमारे पास सरकारी मुलाजिम के पास सिर्फ एक दोबारा यही चीज, बड़ी बात आप करें तो ये एक चीज होती है हमारे पास, ये एक सफेद पोशी, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम के पास सिर्फ ये है, सफेद पोशी, अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज भूख है, अफलास है, परेशानियां है, अफलास है, कुमार बीवी है या बेटा है, बेटी जवान होती वो देख रहे हैं, और जो उसके साथ करप्ट अफसरान है वो कमाई जा रहे हैं। हकीकत है, के ताने भी फिर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फलां कलीग होते चले गए, तुसी के थल्ले रह गए, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको ऊपर का नहीं बताते, उनको कहते हैं नीचे की तरफ देखो, हमसे नीचे कितने हैं, उनका क्या हालात है। आप मेरे ऊपर वालों का ना देखें, मेरे नीचे वालों को भी देखें, उनके क्या हालात है, गरीब आदमी का क्या हालात है, उनकी तरफ देख के अपने आप को गुजारा कर रहे हैं, बस ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह उनसे बेहतर किया जो हमसे बहुत नीचे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, चले 2 महीने बाद 3 महीने बाद तनख्वाह मिलती तो है। तो 2-3 महीने फिर कैसे राशन कैसे पूरा करते हैं? हमने कमेटियां डाली हुई हैं, मुलाजमीन ने मिलके, अंदर की बात हकीकत खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुलाजमीन ने हमने कमेटी डाली हुई है। चंद लोग हैं जो हमारे अदारे के बाहर के लोग हैं, महीने बाद जब लेते हैं उनसे पैसे, उनके पैसों से हम लेके गुजारा कर लेते हैं, जब सैलरी आती है पूरी की पूरी उसमें ठोस देते हैं। ये मुझे बातें बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अल्लाह आपके लिए अपने हबीब के सदके सानी समझ गए ना। कुछ नहीं लगता इमरान खान से, हमें ऐसा ही कुछ नहीं है कि ये वो हमें कभी मेरे इलाके का या कहीं का, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के लिए बेहतरी वो हो जो अवाम को बेहतर समझे, अवाम के लिए फलाह के लिए कुछ सोचे। मुझे ऐसे वैसे सियासतदानों की या बड़े बड़े जागीरदारों सियासतदानों की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल, जाएंगे लेने नवाज शरीफ साहब? मेरी पूरी बात पे अगर आप फिर भी ये सवाल करते हैं, प्रेशर आ जाए, किस बात का प्रेशर आएगा? आप भी समझ में, अगर आप जाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं किस लिए जाऊंगा? मैं तो किसी के लिए नहीं जा रहा। अगर ऊपर किसी ऑफिस आपके अदारे के किसी बड़े ने, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जी, वो तो उनको लेने जाएंगे जो एक बोतल पेप्सी के ऊपर वोट डाल देते हैं। उनते होंडा 1 to 5 मिल रही है ना, मतलब वही बात है ना, क्या जे हम साइकिल भी नहीं मिलनी, होंडा 1 to 5 साइकिल भी नहीं मिलनी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਵੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਡਾ 1 to 5 ਲੱਭੇ। ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਂਡਾ ਲੱਭ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਨਾ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੋਂਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ? नवाज शरीफ के आने से क्या बेहतरी आएगी? पता नहीं, सानू कहना सी ते करनी मजदूरी है। क्या बेहतरी आएगी? क्या बेहतरी आएगी? क्या बेहतरी आएगी? क्या बेहतरी आएगी? बस दसो। नहीं की बेहतरी नहीं, मुल्क ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ 150 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਇਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਓ ਹਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਿਆਨੀ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇਣੀ है व्यूअर्स ये आपने एक आम बंदे की राय सुनी ये मेरे साथ एक सरकारी मुलाजिम खड़े हैं इन्होंने आज मुझे झंझोड़ के रख दिया इनकी आंखों में आंसू थे और इनके जो जज्बात है वो आपने सुन लिए मैं गुज़िश्ता 5 साल से तकरीबन कोरोना के दिनों में थोड़ा सा गैप आया था 6 माह का मैं गुज़िश्ता 5 साल से तकरीबन कोरोना के दिनों में गैप आया था 6 माह का मैं मुख्तलिफ नेशनल मीडियाज़ में प्रोग्राम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम करता हूँ मैंने मज़दूर को सिसकियाँ लेते देखा रोते देखा गुस्से में देखा माओं को देखा बहनों को देखा बेटियों को देखा बुज़ुर्गों को देखा किसानों को देखा सब्ज़ मंडी किसान आते उनको मैंने समटाइम गुस्से में देखा जज्बाती देखा लेकिन सरकारी मुलाजमीन को मैंने हमेशा खामोश देखा सिस्टम को डिफेंड करते देखा और सब कुछ ऑल इज़ वेल की आवाज़ दी कि ऑल इज़ वेल एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल ये सरकारी मुलाजमीन यूजुअली करते हैं लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे सरकारी मुलाजमीन प्रोग्राम के एंड में मैं बता रहा हूँ खड़े हैं उन्होंने कहा यार मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं कोई हमारी फुप्पी का मामे का चाचे का बेटा नहीं है लेकिन जो हमारे साथ हो गया है कि हमारा भरम सिर्फ ये है हमारे पास और कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे पास जब एक सिस्टर भी है सिस्टर कायद आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं आप जाएंगे लेने जी बिल्कुल मैं जाऊंगी मैं तो इंसाफ के लिए ये देखें दर भटक रही हूँ मेरे स्टे की मौजूदगी में खान बरादरी ने मेरी जगह पे कब्जा किया हुआ है बाकायदा मैं मुलाकात भी करनी चाहूँगी मुझे इंसाफ दिलाए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैं सुबह 9 बजे से इन्हीं हालात में घूम रही हूँ प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल किया जाए उनको इंसाफ दिलाया जाए पुलिस और सहाफ़ी उनके साथ मिले हुए हैं मैंने पैसे भी दे के देख लिए मुझे इंसाफ नहीं मिला कायद आ रहे हैं मैं बाकायदा मिलने जाऊँगी मुझे लेके जाएँ मेरे बच्चे भी जाएंगे हम मिलेंगे बाकायदा मिलेंगे कहाँ आ रहे हैं आप भी बेटी है इस कौम की जी जी बिल्कुल जी हम जाएंगे जी मरियम नवाज हम भी आपकी छोटी बहन है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है मैं एक टेलर हूँ मैं सिलाई करके अपना केस भी प्रोसीड कर रही हूँ सारा दिन मैं थाने कचहरी में घूमती हूँ रात में सिलाई करती हूँ अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ मैं रेंट पे रह रही हूँ इसी घर की वजह से मैं रेंट पे कर रही हूँ अब जबकि खान बरादरी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया तो हमारे पास कोई जीने का जवाब नहीं है हमारे पास कहीं रहने की कोई जगह नहीं है हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवाई जाए उन खान बरादरी से कहा जाए कि जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं वो पैसे वापस लें और हमारी जगह हमें सुपुर्द करें ये पुलिस वालों ने रात 10 बजे के बाद हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाया है थाना एसएचओ ने साथ मिलके 15 पे 12 कॉल की है किसी ने हमारी बात नहीं सुनी मैं सुबह से मीडिया के चक्करों में घूम रही हूँ कोई पुलिस वाले को पकड़ने के लिए कोई मीडिया के खिलाफ जाने के लिए रजामंद नहीं है जबकि बाई चांस मेरी अब तक आवाज पहुँच गया प्लीज हमारी हेल्प की जाए आपको अगर आपको नवाज शरीफ साहब इंसाफ दिलाते हैं आप जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं अगर हमें इंसाफ देता है हमें गवर्नर वो चाहिए हमें वज़ीर आला वो चाहिए जो अवाम की आवाज़ सुने जिसने अवाम की आवाज़ नहीं सुने हमें वो किसी किस्म का ऑफिसर नहीं चाहिए किसी किस्म का वो जज वो वकील हमें नहीं चाहिए जो अवाम के साथ इंसाफ ना कर सके देखिए हमें बिल आ रहे हैं ये अवाम के पॉकेट से बैठे हुए हैं ये जज ये वकला हजरात ये ऑफिसर ये पुलिस वाले ये DPO ऑफिस ये अवाम की जेबों से फीसें लेके अवाम के साथ ही इंसाफ बेइंसाफी करेंगे तो हमें ऐसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए कौम की बेटी हैं एक बात का जवाब दें आज आप इंसाफ लेने के लिए निकली हैं आपको जलील हो रही हूँ भूख की वजह से ये देखिए 50 रुपए का सिक्का खा रही हूँ बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया इस बात की टेंशन अलग है मेरे पास
मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं रिश्वत वगैरह। मैं चाहूंगी, जरूर चाहूंगी, मुझे लेके जरूर चाहिएगा। मैं वजीर आला हाउस से होके आ रही हूँ, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब मैं इधर 42 सिटी 42 एसएन नकवी साहब से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिले। जी मोहसिन नकवी साहब से मिलने आई हूँ, मुझे मिलने की इजाज़त नहीं मिली। जी मैं वज़ीर आला हाउस से अभी रिक्शे से उतर रही हूँ। जी मुझे नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। नकवी साहब का नाम लेके उसी जी बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे मिलने के लिए वज़ीर आला हाउस गई थी। आप बाकायदा कैमरे चेक कर सकते हैं। मुझे हर सूरत इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बाप तो मुअज़्ज़ज़ बन गया है, लेकिन अब बच्चे वो क्या भीख मांग के खाएंगे? वो कहाँ से खाएंगे? मुझे बताएं, ये गरीबों के साथ कैसा इंसाफ है? ना उनका DPO सुनेगा, ना उनका DSP सुनेगा, ना उनका SHO सुनेगा। बताएं, मैंने रात तकरीबन 20-25 कॉलें की हैं। आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करें। आप मेरी फ़ोन नंबर मैं बताती हूँ 0325 440 8014, इसको सर्च करें और देखें मैंने कितनी कॉलें की हैं। कोई पुलिस ऑफिसर हमारी मदद के लिए नहीं आया। प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। वो बच्चों की जगह पे प्रॉपर्टी पे काबिज हो रहे हैं। ये चीज़ मैं माँ हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। आपने सिट्टा खाया है और आपको ये नहीं पता आपके बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं? जी बिल्कुल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए सुबह से दर बदर घूम रही हूँ। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने पुलिस वालों को, मीडिया वालों को दे दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरी बात नहीं सुनी जा रही। अब बताइए मैं क्या करूँ? मेरे पास लोग गुर्दे भेज लें और मुझे इंसाफ दिला दें। प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए, हर सूरत चाहिए। प्लीज़ मेरी बात सुनी जाए। कोई मीडिया का ऑफिस, कोई बड़ा बंदा, कोई ऑफिसर मेरी बात सुन रहा है तो उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप ने बच्चों को जगह दी है। मुझे भी इसी वजह से डिवोर्स दे दिया। मैं 2.5 साल से ये सख्त लाइफ, टफ लाइफ गुजार रही हूँ। सारा दिन मैं कचहरियों में होती हूँ। मैं शेखपुरा से रिलेटेड हूँ। बुर्जवाला रहमान गार्डन, बिलमुकाबल रहमान गार्डन गेट मेरा घर है। आप वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं रात को हाथापाई तक गए हैं। जी मुझे शेखपुरा में इंसाफ नहीं मिला। कोई सहाफ़ी मेरी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। शहबाज खां उधर के मीडिया के सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये DPO से बात की, SP से बात की, इस तरह करके उन्होंने अपना जो है एक बनाया, वो क्या कहते हैं यार, वो बनाया, उसके थ्रू वो जो है वो अपना बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़ा बेटा 9वें साल में लग चुका है और बेटी 6 साल की है। छोटा बेटा 4 साल का है। वो पीछे किसके पास है? वो पीछे अकेले हैं, उनके पास अभी इस वक्त कोई नहीं होएगा। वो स्कूल से घर आए होंगे, ताला खोला आएगा, खाना खाया नहीं खाया ये मुझे नहीं पता। मैं सुबह 9 बजे से यहाँ से लील हो रही हूँ कि किसी तरह उनको उनका घर दिलवाया जाए। 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गया हम उधर बैठे हुए हैं, रहमान गार्डन के गेट के ऊपर बैठे हुए हैं कि ये लोग नाम किसके है? वो घर बच्चों के बाप के नाम है, हिबा किया हुआ है, जिसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं। सुबह समा चैनल वालों के पास मैं गई थी, उनको एक वीडियो जो है विड्रॉ करवाई है। ये देखिए, अगर कैमरामैन ये दिखा सके तो ये दिखाए। 1200 वाला स्टाम्प है जो कि बाप ने बच्चों के नाम हिबा किया हुआ है, जबकि स्टे बच्चों के हक में कन्फर्म हो गया हुआ है और इस पे शहादतें मौजूद हैं। अब जबकि बच्चों के हवाले ये प्रॉपर्टी हो जानी थी तो उस बाप ने क्या किया, उस बाप ने एक थर्ड पार्टी को वो जगह सेल कर दी है और वो थर्ड पार्टी उस जगह की हैयत को चेंज करने की खातिर, उसको बदलने की खातिर, उसका नक्शा चेंज करने की खातिर, उन बच्चों का ये स्टाम्प है जो हदूद अरबा उसको गायब करने की खातिर उस जगह की तोड़ फोड़ करके नई कंस्ट्रक्शन कर रही है। जबकि पुलिस थाना हौसी कॉलोनी SDPO शेखपुरा बिल्कुल उसके साथ उसका साथ दे रहे हैं। एक बेटी इस मुल्क में इंसाफ लेने के बिल्कुल, मैं सुबह से बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ कि मुझे कोई मेरी आवाज़ सुने और किसी बड़े ऑफिसर तक पहुँचाए, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इन पुलिस वालों को पकड़े। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ हमारे फोरम से जाएगी। आपने जाना नहीं सिस्टर। जी बिल्कुल, मैं इधर ही हूँ। व्यूअर्स, बात ये है, सरकारी मुलाजम, कौम की बेटी, आम आदमी क्या सोच रहा है आपने सुन लिया। हम रोल गए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहा जो हमें हमारी आवाज़ सुने, हमारा इंसाफ दिलाए। एक पुलिस ऑफिसर जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, नसीर संधू साहब हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आए थे, हाउसिंग कॉलोनी में आए थे। वो एक बहुत काबिल तारीफ पुलिस ऑफिसर हैं, उनको लगभग तरक्कियाँ दे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। लेकिन थाना हाउसिंग कॉलोनी में पता नहीं DPO को क्या बना, उसने उसका ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया और उसको जो है दबाने के चक्कर में
में, लेकिन जो लोग वो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुमने फौजों से वो घबराया नहीं करते। इंशाल्लाह ताला वो नसीर साहब उभरेंगे और इंशाल्लाह ताला वो एक चांद की सूरत में हमारे सामने आएंगे। व्यूअर्स, ये अवामी राय आपने सुनी। सरकारी मुलाजम, कौम की बेटी, आम आदमी क्या सोच रहा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सब के लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।